Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. Today, here I am to explain you a English activity related to your story. It's a very amazing and short story, so listen to it very carefully and watch this video and enjoyed it. Now, let's start. Name is The Greedy Dog. The story name is The Greedy Dog. The story name is The Greedy Dog. This is the one of the most amazing and the short moral story. So students, read this story, listen to me and enjoy the reading. Okay, now let's start. I am going to read this story. Now listen to me very carefully and enjoy this reading. Let's start. Now, there was a dog. There was a dog that was very hungry. Now I am going to read these lines one more time. Listen to me very carefully. There was a dog that was very hungry. 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 There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere. He searched for food everywhere and at last he found a bone. At last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. There was a bridge on the way to his home. There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to home. There was a bridge on the way to his home. As you can see the picture, the dog is searching something. Actually, the dog who was very hungry, he searched for food everywhere and suddenly he found a bone that he picked the bone with his mouth and he started back to his home. बेसिकली एक स्टोरी है एक डॉग की जो कि ग्रीडी डॉग है. ग्रीडी मीन्स लालची. अच्छा, बेसिकली एक स्टोरी है एक डॉग की जो कि बहुत ज़्यादा भूखा है. ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर और वो अपनी भूख की वजह से हर जगह जो है वो अपना खाना तलाश कर रहा है और सडनली उसको एक क्या चीज़ मिलती है, बोन मिलती है. बोन मीन्स होती है हड्डी. ही पिक द बोन विथ हिज माउथ. उसने अपने माउथ में जो है वो बोन को पिक किया, उस हड्डी को उठाया और जहाँ उसका होम था उसने वहाँ जाना, अपने घर की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया. अचानक वो क्या देखता है कि रास्ते में एक ब्रिज आता है. जब वह अपने घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में एक ब्रिज आता है. हंग्री मीन्स भूखा. हंग्री मीन्स भूखा. सर्च मीन्स तलाश करना. फूड मीन्स खाना. एवरीवेयर मीन्स हर जगह. फाउंड मीन्स मिल जाना. बोन मीन्स हड्डी. होम मीन्स घर. ठीक है. देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री. ही सर्च फॉर फूड एवरीवेयर and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. There was a bridge on the way to his
home. एक डॉग है जो बहुत ज़्यादा भूखा है और अपनी भूख में जो है वो हर जगह जो है अपना फूड तलाश कर रहा है, अपना खाना तलाश कर रहा है। सडनली उसे क्या नज़र आता है? एक हड्डी नज़र आती है जिसे वो अपने माउथ में पिक करके अपने घर ले जा रहा होता है और सडनली उसे जो है वहाँ पे क्या नज़र आता है? एक ब्रिज नज़र आता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। When he started crossing it, he saw his reflection in the water. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. Now I am going to read this paragraph one more time. Now listen to me and read it very carefully. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. अच्छा, जब वो ब्रिज के पास जाता है, जैसे ही वो उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तो आसपास जो वाटर होता है, जब वो उस वाटर के अंदर देखता है तो उसे अपना खुद का रिफ्लेक्शन नज़र आता है। रिफ्लेक्शन मीन्स अपना खुद का अक्स नज़र आता है। ठीक है, अब डॉग जो है वो ये सोचता है कि शायद जो उसको रिफ्लेक्शन दिख रही है वो शायद कोई और डॉग है। वो समझता है कि ये कोई मेरे जैसा ही एक और डॉग है, लेकिन वो एक और डॉग नहीं होता, वो खुद ही होता है जिसमें उसको अपना अक्स नज़र आता है या अपना साया पानी में नज़र आ रहा होता है। और वो देखता है कि वो बिल्कुल डॉग जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है और उसके पास भी बोन है जैसे कि मेरे पास है। अब जैसे ही वो देखता है कि पानी के अंदर उसको डॉग का अक्स नज़र आता है तो उसके दिल में लालच आती है और वो चाहता है कि मैं जो ये बोन है उसके पास जो पानी में से डॉग नज़र आ रहा है ये बोन भी मुझे मिल जाए और मेरे पास भी 2 बोन हो जाएंगी। ठीक है, जबकि वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है और लालच कर रहा है, जबकि ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो पानी में उसको नज़र आ रहा है। ठीक है, When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He thought to get that other bone too. एक डॉग है जो बहुत ज़्यादा भूखा है और वो अपने भूख की तलाश में जगह जगह खाना तलाश कर रहा है और अचानक उसे अपना खाना तलाश करते करते एक बोन मिलती है। बोन मीन्स हड्डी। तो वो बोन जो है अपने माउथ में पिक करके और उसे अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है और जैसे ही उसको जा रहा होता है तो रास्ते में एक ब्रिज आता है। जब वो डॉग जो है उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है तो वो देखता है आसपास जो पानी है, उस पानी में जब वो देखता है डॉग तो उसे एक रिफ्लेक्शन नज़र आती है। जब वो देखता है तो वो समझता है कि पानी के अंदर जो है एक और डॉग है और उसके पास भी मेरी तरह की एक बोन है। उसके दिल में ये देखते ही लालच आ जाता है। डॉग ये सोचता है कि क्यों ना ये बोन मुझे मिल जाए जो कि पानी में मुझे नज़र आ रही है। और जबकि वो ये बोन जो है वो कोई अनदर डॉग नहीं है बल्कि वो खुद ही वो डॉग है जो कि लालच कर रहा है कि उसे एक से ज़्यादा बोन मिल जाए। When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that other bone too. वो चाहता है कि ये बोन उसे मिल जाए। जैसा कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये डॉग है और इसके पास बोन है। ठीक है, अब ये चाह रहा है कि जो पानी में से वाटर में यहाँ जो है उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है उसे ये बोन भी मिल जाए और वो इसे इन दोनों को अपने फूड के तौर पर अपने घर ले जा सके। ठीक है, When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog
with a bone in water. He wanted to get that other bone too. Now, let's move to the next slide. Now start reading. So, he started barking at his own reflection. So, he started barking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. Okay, now I am going to read this paragraph one more time. Listen to me and read this paragraph very properly. So, he started barking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब डॉग जो है अपना रिफ्लेक्शन देखता है पानी में, जो वो बार्क करना शुरू करता था. बार्क मीन्स होता है वो भौंकना शुरू कर देता है. अब जैसे ही डॉग जो है वो भौंकना शुरू करता है तो उसके माउथ से जो है वो बोन जो है वो गिर जाती है. कहाँ पे? पानी में. और इस तरह जो है वो अपनी जो उसने लालच की थी उसकी वजह से उसके पास जो बोन थी उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा. वो समझ रहा था कि उस पानी के अंदर जो डॉग है तो मैं उससे भी ये बोन ले लूँ और मेरे पास जो है वो 2 बोन हो जाएंगी. लेकिन वो जो है उसका जो रिफ्लेक्शन था वो गलत था, क्योंकि वो गलत देख रहा था और उसने उस रिफ्लेक्शन की वजह से लालच की थी, जो कि उसे लालच महंगी पड़ गई और उसे जो उसके पास बोन थी वो भी उसके हाथ से चली गई. So he started barking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. Barking means होता है BARKING, barking. Barking means भौंकना. His own reflection means खुद का अक्स या खुद का साया या खुद की परछाई. OWN, own, reflection, 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 reflection. Reflection means अक्स, परछाई या साया. His bone fell in water. Bone, BONE, bone. Bone means हड्डी. Fell, FELL, fell. Fell means गिर जाना. In water, WATER, water. Water means पानी. As soon as he opened his mouth. जैसे ही उसने अपना माउथ खोला वो बोन जो उसके माउथ में थी वो पानी में गिर गई और उसे जो उसके पास बोन थी उससे भी हाथ धोना पड़ा. द ग्रीडी डॉग लॉस्ट हिज बोन. ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. लॉस्ट मीन्स LOST, लॉस्ट. लॉस्ट मीन्स खो जाना. लॉस्ट मीन्स खो जाना. BONE, बोन. BONE, बोन. बेसिकली ये स्टोरी है एक ग्रीडी डॉग की. द ग्रीडी डॉग एक डॉग की स्टोरी है जो कि बहुत ज़्यादा भूखा है और वो अपने भूख की तलाश में जगह जगह खाना तलाश कर रहा है और अचानक उसे एक बोन नज़र आती है. बोन मीन्स हड्डी. वो उस बोन को अपने माउथ में पिक करके अपने घर जा रहा होता है. जब वो घर जा रहा होता है रास्ते में एक पुल आता है, एक ब्रिज आता है जिसे वो क्रॉस कर रहा होता है. क्रॉस करते करते वो देखता है कि पानी में उसे एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है एक अनदर डॉग की. वो समझता है कि पानी में जो है एक और डॉग है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और उसके पास भी एक बोन है जो उसने अपने माउथ में पिक की हुई है.
जबकि जो है वो बोन और जो वो डॉग है वो उसी डॉग का रिफ्लेक्शन होता है जिसे वो पानी में देख रहा होता है। ठीक है, अब वो जब भी देख के उसके दिल में ख्याल भी आता है और लालच भी आती है कि जो है क्यों ना मैं ना इसकी बोन भी ले लूँ, जो पानी के अंदर जो डॉग है इसकी भी बोन ले लूँ, तो मेरे पास जो है वो 2 बोन हो जाएंगी। ठीक है, अब डॉग ने इसमें लालच की थी ना, अब लालच जो है वो कभी कभी महंगी भी पड़ जाती है। हमें जो भी जितना और जैसा भी मिले उसमें हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉग ने जो है वो लालच की थी। अब डॉग ने जैसे ही उस डॉग का रिफ्लेक्शन देखा तो उसने उसके ऊपर बार्क करना शुरू किया, मतलब भौंकना शुरू किया, और जैसे ही उसने बार्किंग शुरू की तो उसके माउथ से वो बोन पानी में गिर गई। अब पानी में गिर गई तो डॉग परेशान हुआ कि जो है कि ये जो मेरे पास बोन थी वो पानी में गिर गई, और जो पानी में रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था उसके पास भी बोन नहीं है, क्योंकि उसने बेवकूफ़ी की थी ना, उसने बेवकूफ़ी की थी। वो समझ रहा था कि ये अनदर डॉग है, कोई वो एक और डॉग है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन था उसी डॉग का। और जो उसके पास बोन थी उसे उससे भी हाथ धोना पड़ा अपने लालच की वजह से। जो उसके पास भी बोन थी उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा और वो भूखा का भूखा ही रह गया। ठीक है, सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। हिज बोन फेल इन वाटर as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. So students, what did you learn from this story? आपने इस स्टोरी से क्या सीखा और इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी लालच जो है वो महंगी भी पड़ जाती है और कभी कभी लालच हमें तकलीफ़ भी देती है, तो हमें जो है वो लालच नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी चीज़ जितनी क्वांटिटी में मिले उसमें शुक्र करना चाहिए। ठीक है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट डोंट बी ग्रीडी। हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।